Hello friends, welcome to my channel. Today we are discussing about the chapter 1 to 5, all type of MCQ. 1 mark, true false, fill in the blanks, objective, all the 1 to 5 chapters MCQ to watch. So watch all the whole video to get full marks from 1 to 5 chapter. So let's start video. So friends, we start LMR. LMR means last minute reading. When you go to exam, before the half an hour, 1 hour, you'll read this type of question to get out of full marks. So let's start first chapter. When magnesium ribbon burn with oxygen, it get oxidized and form magnesium oxide. Magnesium oxide is basic nature. Okay, you know metal oxide are in basic nature and give reaction with acid and salt and water form. Friends, Zn plus H2SO4, then complete the equation. In your exam ask this type of question to complete the equation. Zn plus H2SO4, then your equation is ZnSO4 and produce hydrogen gas. Means this type of question asked when metal react with acid, which gas is evolved during the reaction. When metal react with acid, then hydrogen gas. Friends, this all the equation are asked as the complete the equation or balance the equation in form of balance equation or complete the equation. This equation photosynthesis reaction is asked in last two board exam. C6H12 O6 is our fill in the blanks and it is answer. Now in this year if it is asked as a balance equation. Okay, so it is an example of water. When water gas 340 atmosphere temperature it form methanol. So it is asked as a fill in the blank as a methanol. Friends, in other MCQ give the example of combination reaction. So CaO is a click oxide, quicklime, calcium oxide, sorry. So calcium oxide react with water, then it form calcium hydroxide. It is known as a slacked lime. This is known as a combination reaction. Friends, other example of exothermic reaction, the burning of coal, natural gas. We take respiration. During the respiration it produces heat and means energy and water. So decomposition of vegetable, it is also example of exothermic. We know exothermic reaction, the reaction in which energy is produced during the reaction is called exothermic reaction. So these four are the example of exothermic reaction. Friends, calcium carbonate heated, then it decompose into calcium oxide and carbon dioxide. Means it is a decomposition reaction. It is a combination reaction. This is the example of combination reaction. In combination reaction, two reactant produce a single product. Means two reactant react and get single product. In this reaction, one reactant break down into two product is called decomposition reaction. This is also decomposition reaction, example of decomposition reaction. It is asked in the form of complete the equation. तो मित्रों देखो, ये हमारे इतनी बात हमने की है कि भी ये सारी जो हमने बात की है ये हमको इक्वेशन को कंप्लीट करो ऐसे हमको पूछते हैं. बैलेंस करो इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्वेशन, ऐसा भी हमको पूछ सकते हैं. देखो फ्रेंड, ये हमारा कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये हमारा डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है. ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, इसमें से कौन सा ऐसा पूछ सकते हैं. उसके बाद ये जो हमारी लास्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क की रिएक्शन है कि भाई हम जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर जो रिएक्शन यूज़ होती है वो AgBr मीन्स सनलाइट Ag प्लस Br2. देन Fe, देखो ये रिएक्शन दे दी तुमको. अगर सपोज Fe प्लस CuSO4 देन FeSO4 प्लस Cu,
then it is the displacement reaction, the example of displacement reaction. But you give only the reaction and then explain this reaction. So you write the first of write Fe react with CuSO4 and form FeSO4 solution and give copper metal. Then describe the, फिर definition लिखना है तुमको, when more reactive substance remove the less reactive substance from their solution is known as a displacement reaction. Friends, displacement के then after double displacement reaction. What is the double displacement reaction or the precipitative reaction? Precipitation reaction भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो वाइट प्रिसिपिटिव मिलते हैं बेरियम सल्फेट के BaSO4 के, वो हमको टेस्ट ट्यूब में मिलते हैं। जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये Na इधर चला जाता है, Ba इधर आ जाता है, मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस इज नॉन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये हमको खाली वो प्रिसिपिटिव रिएक्शन एक अलग नया शब्द है, तो भी तुमको यही लिखना है कि कोई अलग रिएक्शन नहीं है। Na2SO4 प्लस BaCl2 तो BaSO4 प्लस 2NaCl। फ्रेंड्स, ये लास्ट में एक इक्वेशन दूसरी है कि तुमको इसमें से ऐसा दिया जाता है कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरीफाई विच एटम विच कंपाउंड लॉस ऑक्सीजन और विच गेट ऑक्सीजन। देखो ये हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन को इसने गेन किया, मीन्स कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ा। अब जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब इसमें देखो ये ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन दूर हुआ तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है हमारी, ये अभी CBSE में पूछा था कि कॉपर को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम गर्म करेंगे तो वो ब्लैक हो जाता है, तो उस पर क्या बन जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन लिखो, ऐसा पूछा था तो पूछ सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग में पता चला जिसमें हाइड्रोजन दूर होता है ना, उसका रिडक्शन होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑप्शन में तुम इन दोनों में से ही आएगा, इन तो ये दोनों आंसर में नहीं आएंगे, आंसर इन दोनों में से ही लिखना है। इसलिए तुक्का मारो तो इन दोनों में से माना, कुछ भी पता नहीं चले तो इन दोनों में से ही लिखना ऑप्शन में। ठीक है, पर जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है ना, अभी जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसमें से ऑक्सीजन दूर हुआ उसका रिडक्शन हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। पर वो तो तुमको पता है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन कहलाता है, तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसका रिडक्शन होता है, लेकिन होता क्या है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब ये विच गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस होती है, वो पड़िका होते हैं ना, हम बटाका के सब वेफर के जो पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो प्रिवेंट करती है चिप्स को ऑक्सीडाइज से। ये गए साल बोर्ड में पूछाया था। देखो फ्रेंड, सेकंड चैप्टर में टर्मरिक पेपर है, वो बेस की टेस्ट के लिए यूज होता है, वो रेड कलर देता है। और चाइना रोज है, वो एसिड के लिए होता है, वो भी रेड कलर देता है। तुमको पता है मिथाइल ऑरेंज है, वो एसिड के लिए यूज होता है और फिनोप्थेलिन बेस के लिए होता है। ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर है। और आर्टिफिशियल में हमको याद रखना, मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज ए एसिड। तो बाकी तो तुमको फिनोप्थेलिन है वो Pb है, वो फिनोप्थेलिन इज यूज्ड एज अ बेस, बराबर। अभी उसको हम उल्टा कर देंगे तो Ba, देखो Ba के बाद Ma होता है, तो बेस है वो क्या होता है कि वो Pb होता है। चलो कोई बात, इसमें एक याद रखना तुम कि भाई मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड के टेस्ट के लिए यूज होता है, वो रेड कलर देता है, पिंक कलर। और जो फिनोप्थेलिन है वो बेस के साथ पिंक कलर देता है। ठीक है, अब देखो मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो तुमको पता है कि सभी प्रकार के मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कि नहीं, मेरे थर्ड चैप्टर के वीडियो के अंदर, उसमें स्पेशल थर्ड चैप्टर का वीडियो है, उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एसिड और मेटल रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन सभी प्रकार के बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करते नहीं है, और सभी प्रकार के मेटल है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते।
तो एक सिलेक्टेड थोड़े बहुत ही बेस होते हैं और मेटल होते हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं। तो मैंने एक जेड जिंक का एग्जाम्पल लिया है। तो फ्रेंड ये तुमको कंप्लीट करने के अंदर भी पूछ सकते हैं कंप्लीट द इक्वेशन, अथवा इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट बनता है। अथवा ऐसा पूछे कि भाई एसिड भाई बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसको समझाओ, ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट वाला तुमको याद रखना है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, ये जो N2CO3 है हमारा N2CO3 में हम अगर पानी एसिड डालेंगे, मतलब ये वॉशिंग सोडा है हमारा, तो तुमको पता है कि वॉशिंग सोडा में हम जब एसिड डालेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसमें तो ये हमारा बेकिंग सोडा है खाने का, उसमें भी अगर हम एसिड डालेंगे तो उसमें भी यही प्रोड्यूस होता है। तो फर्क क्या है दोनों में, सिर्फ उसको बैलेंस करना है। हमको क्या करना है, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगा दिया, 2 Na है तो 2 Na हो गए, यहाँ 2 Cl है तो यहाँ 2 Cl हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बैलेंस कर दिया। ये तो ऑटोमेटिक बैलेंस ही है। देखो फ्रेंड, ये अभी फिर से मैंने बात की कि जो हमारा जो क्विक लाइम था, बराबर, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमने पानी डाला तो CaOH का O2 मतलब स्लैक्ड लाइम बना, मतलब इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, इट इज़ ऑल्सो लाइम वाटर। अब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो CaCO3 बनता है। वो N2CO3 था, इधर CaCO3 है प्लस पानी। अब देखो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो MgCl2 प्लस हमको बताए पानी बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ हम 2 ले लेंगे। तो फ्रेंड ये बुक के अंदर रिएक्शन नहीं दी हुए, तुमको ऐसा पूछते हैं कि भाई मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड देन इट गिव सॉल्ट प्लस वाटर, पर तुमको ऐसा पूछेंगे वाई मेटालिक ऑक्साइड नॉट रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं, तो तुमको पता है बिकॉज द मेटालिक ऑक्साइड, द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इज बेस, सो बेस इज नॉट रिएक्ट विथ बेस, बेस नॉट गिव रिएक्शन विथ बेस, ओके। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना हमारा, वो उस बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, बराबर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन है वो भी बुक में दिया हुआ नहीं है, तो मैं तुमको बता देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर उसको हम यही वाली रिएक्शन, यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम CaOH का O2 मीन्स का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम व्हेन वी पास्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन इट गिव CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। ये भी क्या है हमारा नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन है। तो तुमको कोई पूछ सकता है कि भाई ये नॉन मेटल है, वो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्यों एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों, बिकॉज द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर सो नॉट गिव विथ एसिड, ठीक है। तो विच सॉल्यूशन पास फ्रॉम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रूआउट द सॉल्यूशन, तो देखो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, उसमें करंट पास होता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आयन। तुमको ऐसा पूछे किसमें से नहीं होता है, तो ऑप्शन में अल्कोहल होगा, ग्लूकोज होगा, उसमें से नहीं होता है। फ्रेंड ये जो रिएक्शन है वो पानी की एसिड के साथ रिएक्शन, जबकि हम पानी में थोड़ा एसिड डालेंगे तो क्या बनता है, H3O प्लस आयन और Cl माइनस। डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस किसको बोलते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। व्हेन एसिड इज मिक्सड विथ वाटर then the concentration of H3O plus ion is decreased per unit volume, so the process is called dilution and that it is called dilute acid। मतलब कि एसिड को पानी में हम मिक्स करेंगे तो H3O प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो तो सिंपल है, पानी डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, उसको डाइल्यूट बोलेंगे। सेम चीज़ बेस में भी वो सही है, बेस को जब मिक्स विद द वाटर एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज डिक्रीज, बराबर, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट बेस। फ्रेंड ये देखो pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। तुमको ऐसा पूछे कि इफ द pH इज 6 देन POH कितना, तो 14 में से 6 को माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। गैस्ट्रिक जूस की pH ये हमारे एक MCQ पूछते हैं, लेमन जूस की 2.2, गैस्ट्रिक जूस की 1.2, ब्लड की 7.4, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है, ठीक है। देखो pH ऑफ सॉइल 6.5 टू 7.3 होती है। इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन डेली लाइफ में हमारे जो 5 पॉइंट है
कि भाई सर्वाइव करने के, लाइफ सर्वाइव के लिए, दूसरा सॉइल के लिए, फिर आवर डाइजेस्टिव, टूथ डिके, और उसके बाद हमारा जो एनिमल्स इंसेक्ट हमको करते हैं, बाइंड स्टिंग कर जाते हैं, लाल कीड़ी जो रेड एंट है वो, उसके लिए। तो वो जो हमारे पाँचों पाँच हैं वो तुमको बड़े क्वेश्चन में कर लेना, अभी हमने इसमें नहीं लिए, पर मैंने खाली एमसीक्यू में ले लिया है। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? लेस देन 5.5 होता है तब। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक। ये 2 साल पहले के गए साल में पूछाया था। उसके पहले रेड एंट स्टिंग करती है ना, तो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है। फॉर्मिक एसिड का जो केमिकल नेम है, वो आईयूपीसी नेम है, वो मिथेनोइक एसिड है। नेटल स्टिंग मतलब हम गुजराती में उसको कुंवच बोलते हैं। कुंवच होती है वो खेत में कहीं बाढ़ में होती है, तो वो क्या होता है, उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है, बराबर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एक बार बोर्ड में पूछाया था, CaOCl2, CaOCl2, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? तो देखो, इसका इस चैप्टर का हमारा मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो होल हेराल्ड क्लोर अल्कली मेथड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लीचिंग और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए किचन में जिसका यूज़ होता है, उसके बारे में तो वो हमारा आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन वो है, और दैनिक जीवन में पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है वो वाला है। अब देखो, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट मतलब क्रिस्टलाइन वाटर होता है उसके अंदर। ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं वो तुमको पूछते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा जिप्सम है। ये 3 ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है, इसमें क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पीओपी? पीओपी का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaO, भाई CaSO4.12H2O हमारा पीओपी का फॉर्मूला है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमारा जो 3rd चैप्टर है ना, वो मैंने इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी आधे से ऊपर मेरा वीडियो है, उसमें आप देख लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए मैं उसको नहीं लिया, रिपीट नहीं किया, खाली वहाँ से जहाँ से बाकी था वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 3rd चैप्टर इज इन पार्ट 2, वी स्टार्ट एज द पार्ट 2। विच मेटल आर फाउंड इन द फ्री स्टेट? देखो, फ्री स्टेट में विच मेटल आर फाउंड, कौन से इस मेटल होते हैं फ्री में होते हैं? तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और कॉपर, ये हमको क्या फ्री में मिलते हैं फ्री स्टेट में, मतलब कि रिएक्टिव नहीं होते हैं। हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, पोसो कामे ए जेलो ले हाको मशीगो, तो ले हाको को मशीगो हमारे जो 4 हैं वो लेस रिएक्टिव है। अब जो नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये ऐसे मेटल है कि जो कभी हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। तो हमारा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। और मॉडरेट में क्या, ये क्या है हमारा पोसो कामे ए तक हमारा नेवर मिलेगा, मोर रिएक्टिव है। जेलोले मॉडरेट है। हाको मशीगो ये हमारा नॉन रिएक्टिव है। देखो, अब इसके बड़े क्वेश्चन कौन से है? तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग है, फिर हमारा एक्सट्रैक्शन मेटल ऑफ लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद मिडल में जो हैं उनकी वो रिएक्टिविटी सीरीज, और उसके बाद टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज, बराबर। 1 मार्क में रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग किसके लिए होता है? तो सल्फाइड युक्त जो अशुद्धि होती है, और उसके लिए हमको पता है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की हाजिरी में वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन वो कार्बोनेट ओर के लिए यूज़ होता है, उसमें भी क्या होता है, लिमिटेड हम क्या करते हैं, लिमिटेड एयर में उसको गर्म करते हैं। उसमें ज़्यादा एयर में गर्म करोगे तो सल्फाइड होगा, तो रोस्टिंग कहलाएगा, और कार्बोनेट में कैल्शियम आता है। ये हमारी थर्मिट रिएक्शन है। थर्मिट रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमको क्या कि ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ये सेम ही है, पर अगर ये एफ के पीछे यहाँ पे हमारा सॉलिड की जगह लिक्विड लिख देना तो ये थर्मिट रिएक्शन बन जाती है। अगर सॉलिड लिखे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, एल लिखा तो थर्मिट करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुमको वैसे पता है कि भाई एलओई ऑफ मर्क्यूरी एमालगम है, बराबर, और तुमको पता है कि द ओरे ऑफ मर्क्यूरी है वो सिन्नाबार है, HGS। मैंने आगे के वीडियो में कहीं बताया है, लेकिन याद रखना सिन्नाबार HGS इज द ओरे ऑफ मर्क्यूरी। अब ब्रास है वो किससे बनता है? कॉपर और जिंक, ऐसे भी दिया होता है। ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टीन से होता है।
और सोल्डिंग वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड प्लस टीन से बना होता है, Pb प्लस एसएन से हमारा सोल्डिंग। स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के अंदर 0.05% कार्बन होता है, मैंने नहीं लिखा। देखो फ्रेंड, ये 4 चैप्टर का भी मेरा वीडियो है। कोवलेंट बॉन्ड की क्या है डेफिनेशन, किसी को ध्यान में नहीं आती, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। इसका वेटेज 6 मार्क है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड चैप्टर में से 4 मार्क का आएगा। अब इसमें 2 मार्क का MCQ वगैरह आएगा, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सैचुरेटेड अनसैचुरेट आता है, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसको सैचुरेट बोलते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेट बोलते हैं। ये बेंजीन का फॉर्मूला है फ्रेंड। ये तीनों में से एक फार्मूला पूछते हैं कि अल्केन का फॉर्मूला क्या है, अल्कीन का क्या है, अल्काइन का क्या है, ऐसा पूछते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्रेंड पीछे क्या आता है, एन सफिक्स लगता है, ब्यूट मतलब 4, बूट के ऊपर पेंट मतलब 5, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, ये हमारा हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है। अब पेंटेन बोले तो पेंट मतलब 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 लगा दिए। इन आता है पीछे, तो यहाँ इन इतने में कहीं भी हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब देखो इसके 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, तो 3 और 4, इसके 1 2 3 और ये 4, इसके 2 इसके 2 इसके 3। ठीक है। अब ये हमारा इथाइन, इथाइन में कितने कार्बन होते हैं, 2। अब इथाइन में कार्बन आइन आता है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। इन सफिक्स आता हो तो डबल बॉन्ड, एन आता हो तो सिंगल बॉन्ड। इथाइन बोले पीछे आइन लिखा हो तो तुमको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कर देना। अब इसके 1 2 3 तो हो गया, तो एक ही चाहिए इसको, इधर भी 3 हो गया, एक ही चाहिए। ये सा हम लिख सकते हैं इथाइन का फॉर्मूला। इसमें बोले तो CH2 CH CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसमें बेस है। अब देखो अल्कोहल में तुमको पीछे क्या लगेगा, ऑल लगेगा। अब तुमको ऐसा एग्जाम में पूछा कि भाई ब्यूटेनॉल बोला तो 4 कार्बन बना दो और पीछे ऑल लगा दो, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। एल्डिहाइड में आल लगेगा, प्रोपेनाल बोल दिया, प्रोपेनाल, तो 3 कार्बन लगाओ और तीसरे कार्बन पे ही CHO लगाना है। ठीक है, प्रोपेनॉल। कीटोन हमारा तीसरे कार्बन से ही चालू होता है और बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ बाकी तरफ प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और बीच वाले कोई भी कार्बन पे। अब पेंटेनॉन बोले पेंटेनॉन ऑन आवे तो 5 कार्बन बना के इन तीनों में से किसी के ऊपर हम डबल बॉन्ड ओ कर सकते हैं, बाकी जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन एडजस्ट करने का। अब ये पीछे ओइक आता है एसिड में, मीथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो अभी ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है तो ऐसा लिखा होगा ब्यूटेनोइक एसिड, तो हमको 4 कार्बन बनाने हैं और चौथे कार्बन पर ही WH लगाना है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, ये 1 मार्क का MCQ इसमें से पूछते हैं। अब देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो ब्लू फ्लेम से जलते हैं। हमारा घी का दिया करते हैं ना, तो वो ब्लू फ्लेम से जलता है, मतलब नॉन शूटी फ्लेम, मतलब धुआं उसमें निकलता नहीं है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तेल का दिया वो येलो फ्लेम से जलता है, उसमें शूटी फ्लेम मतलब धुआं होता है। ठीक है। द प्रोसेस विच यूज टू वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, कौन सी प्रोसेस का यूज होता है, तो हाइड्रोजिनेशन। उसमें कौन सा कैटलिस्ट होता है, तो निकल होता है। देखो इसमें हम निकल डाल देंगे तो यहाँ पे क्या, वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, मतलब अनसेचुरेट में से सेचुरेटेड बन जाएगा। अब देखो फ्रेंड, ये इक्वेशन कंप्लीट करो, ऐसा पूछ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या होता है, हम मैथ्स के अंदर जैसे सब्स्टिट्यूशन 3.2 में पढ़ते थे कि भाई इसको ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब कि ये Cl इसको आ गया तो ये CH3Cl हो गया और ये HCl हो गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में से हमारे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब देखो तुमको ऐसा पूछे कि कंपाउंड ए इज यूज्ड इन टिंचर आयोडीन, तो कंपाउंड ए का नाम क्या होगा, वो रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। तो कंपाउंड ए का नाम बताओ, उसकी रिएक्शन बताओ, उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, ऐसा पूछते हैं। तो टिंचर आयोडीन बोले तो भी इथेनॉल आता है उसका नाम,
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन है, और उसकी रिएक्शन भी तुमको बतानी है, जो पेज नंबर 71 पे हमको बुक में दिया हुआ है। आई थिंक 72 में के 70, हाँ 71 72 में ही है। अब देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सोडियम के साथ रिएक्शन करो मेटल के, तो भी हमको यही बताना है कि भाई ये कंपाउंड ए रिएक्ट विथ सोडियम मेटल एंड गिव सोडियम इथॉक्साइड, तो वो भी हमको लिखना है। अब देखो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को हम विनेगर बोलते हैं। अब इसका भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कंपाउंड ए रिएक्ट विथ कंपाउंड बी एंड गिव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, कंपाउंड ए रिएक्ट विथ कंपाउंड बी गिव इथाइल एसीटेट, ऐसा भी पूछ सकते हैं, गिव एस्टर, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो हमारे को जो 72 पेज ऊपर दिया हुआ है एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन वो कंप्लीट कर देनी है, और हमको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक एसिड लिखना है। अब उसके बाद कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कंपाउंड ए रिएक्ट विथ N2CO3 और गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो भी हमको इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी थर्ड वाली है ना, वो लिखना है। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों कर डालोगे 4 मार्क पक्के हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ी कर देना कि वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में होता है, प्रिजर्वेटिव तरीके। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, कंपाउंड ए इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, तो उसका नाम क्या है, ये तो वो इथेनोइक एसिड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा पूछ सकते हैं। सॉप क्या है भैया हमारा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट है, એટલે बॉन्ड CONA हमारा सॉप का फंक्शन ग्रुप है, और डिटर्जेंट का बॉन्ड SO3Na है, NH4FB है। याद रखना है ये सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के होते हैं सॉप। ये हमारा क्या है, तो इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, कितने कार्बन कार्बन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में कितने, ऐसा पूछ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी बोले C2H6 बोला है तो दो हर जगह हमको हाइड्रोजन बना देना है। तो हमको कार्बन कार्बन के बीच में 1 कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 कोवलेंट बॉन्ड। टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, तो 7 बने। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट है हमारे 118 है, उसमें से 94 नेचुरली है, बाकी सिंथेसाइज है। न्यूलैंड के ज़माने में 56 एलिमेंट थे। न्यूलैंड का लॉ है एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम तक ही है MCQ के लिए, और मैनलिप के ज़माने में 63 एलिमेंट थे। मैनलिप के ज़माने में कितने ग्रुप होते थे, 8 ग्रुप और 6 पीरियड होते थे, और मॉडर्न पीरियडिक में 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। फ्रेंड्स, ये गए साल पूछाया था कि ये 2-8-2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैग्नीशियम का है। तो ये इंपॉर्टेंट इतने ही है, देखो कैल्शियम क्लोरीन का 2-8-7 है, सोडियम का 2-8 है, 11, 12, 13 और 17। वो तो तुमको आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 भरा था, उसके बाद 8, उसके बाद बचते वो थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 प्लस है तो उधर माइनस कर दो, सोडियम 11 है तो 1 कम हो जाएगा, कैल्शियम 20 है तो 2 कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है उसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5 होते हैं लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ग्रुप है वो हमारा सबसे एक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और 17 ग्रुप है हमारा मोर नॉन मेटल का ग्रुप है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। अब जैसे ही तुम लेफ्ट से राइट में जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, दूर जाओगे, लेकिन नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी तरफ आ रहे हो। न्यू जाओगे तो मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी तरफ आ रहे हो, नॉन मेटल की कम हो जाएगी। न्यू जाओगे तो मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, न्यू जाओगे तो मेटल की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, अब वैलेंसी किसको बोलते हैं तुमको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। अब एटॉमिक साइज़ क्या होती है भैया, यूँ जाओगे तो एटॉमिक साइज़ कम होती है, न्यू जाओगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। पहले तुमको इतना MCQ में याद रखना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होती है, उसकी रेडियस भी डिक्रीज होती है, और हम न्यू जाएंगे फ्रॉम अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी और एटॉमिक साइज़ भी उसका बढ़ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ सेमी मेटल कौन कौन से, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये याद रखना है। इसमें से विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेमी मेटल। फ्रेंड, इस प्रकार से हमने 5 चैप्टर कर लिए। 6 चैप्टर में से हमको कोई MCQ नहीं करना है क्योंकि उसका एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो भी हमको पता है न्यूट्रिशन इन है, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इतना रिस्क लेके कर दो 4 क्वेश्चन, और 2 मार्क के क्वेश्चन है आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंट है, और ब्लड वेसल कर लो और लिम्फ कर लो, लसिका। ये 4 क्वेश्चन कर दो, लिम्फ बराबर, आर्टरी, वेन
और उसके बाद जाइलम फ्लोएम करना हो तो वो भी कर दो। ये 2-2 मार्क के हैं और एक 4 मार्क के इतने। 7 चैप्टर का मेरा 7-6 लगा के मैं अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे को ले लेता हूँ, ठीक है।